میں منور جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دستک نیوز کرناٹکا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سامنے لوک سبھا الیکشن ہے۔ اسی کے تعلق سے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی لہر جس میں چاہے وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا، سوشل ڈیموکریٹک ٹریڈ یونین، وومنس انڈیا موومنٹ اور ہر ایک سیکولر مائنڈیڈ پولیٹیکل پارٹیز، سب کے سب بلکہ علماء دین بھی آج ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہے ہیں۔ مقصد صرف ہندوستان کے دستور کو، آپس کے بھائی چارے کو، اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے اور بلکہ ہندوستان کو ڈکٹیٹرشپ سے بچانے کے لیے فاسد فورسز کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ معزز حضرات، آنے والے 26 تاریخ کو ہونے والے MP الیکشن میں ہونے والے MP انتخابات کے سلسلے میں آپ کے سامنے علماء کرام اپنا خطاب فرمائیں گے۔ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں اسٹیج کے قریب تشریف لائیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ آنے والے 26 تاریخ کو ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ یہ انتخابات اس وقت ملک کے سب سے اہم انتخابات ہیں۔ یہ انتخابات، یہ آنے والا الیکشن ملک کو تبدیل کرنے والا الیکشن ہے۔ اگر اس الیکشن میں ہم لوگ چوک کر دیں، اس الیکشن میں ہم لوگ غفلت برتیں، اس الیکشن میں ہم لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہ کریں تو یاد رکھنا پھر کبھی ملک میں الیکشن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ملک میں الیکشن کے بجائے سلیکشن کی حکومت کی جائے گی۔ آج ملک میں یہ فسطائی طاقتیں، یہ BJP RSS کی طاقتیں اور قوتیں یہ ملک کا دستور بدلنا چاہتی ہیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ اکثریت پر آ جائیں تو اس ملک کا دستور اور اس ملک کا سنویدھان وہ لوگ بدل دیں گے، اور اس ملک میں جو جمہوریت ہے، اس ملک کی جو سیکولرزم ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو یہ اویئرنیس دلانا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت کو سمجھو، ووٹ کی طاقت اور ووٹ کی قوت کیا ہے اسے ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ 5 سال میں ایک مرتبہ جو ہمیں ووٹ کا موقع ملتا ہے، یہ نوٹ سے بہت بڑی قیمتی چیز ووٹ ہے۔ اگر 5 سال میں ایک مرتبہ آپ صحیح سوچ سمجھے بغیر اگر کسی کو بھی ووٹ ڈال دیں گے، 5 سال تک ہم پچھتائیں گے۔ 2014 میں اس ملک میں ایسا حکمران ہم پر مسلط ہوا جس حکمران نے سب سے پہلے مسلمانوں سے حقوق چھینے، ان کے مسجدوں کو پر پابندی لگانے کی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے دلتوں کی لنچنگ کی، مسلمانوں کی لنچنگ کی، کرسچنوں کی گرجا گھروں کو انہوں نے توڑا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے اس ملک سے روزگار کو ختم کیا، انہوں نے اس ملک سے بھائی چارے کو ختم کیا، انہوں نے ملک کو لوٹا، انہوں نے ملک کی سمپتی کو آگ لگائی۔ ان تمام چیزیں کرنے کے باوجود پھر 2018 میں وہی حکمران اس ملک پر مسلط ہوئے۔ آج سوچنے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ کل پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا اس ملک کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب اپنی اسپیچ میں کہتے ہیں مسلمانوں کو یہ لوگ گھسپیٹیاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بچے جننے والے ہیں، وہ لوگ
दूसरी कौमों को हमारे खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इस वक्त बीजेपी को सबक सिखाने की जरूरत है। इसलिए हम लोग सोचते समझते लाख हमारे इख्तलाफात इनसे हों, लेकिन हम इस वक्त इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस मैसूर में हमारे जो एमपी कैंडिडेट हैं एम लक्ष्मण साहब, इनको जिताने की हम लोग फिक्र करें। हमारा सीरियल नंबर 2 है, हम इनको जिताकर इस मुल्क में और हमारी रियासत में एक गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाली, एक सेकुलरिज्म दस्तूर को मानने वाली हुकूमत को हम लोगों को यहाँ पर लाना है। इसके लिए हमें अपना वोट का सही इस्तेमाल करना है। मैं बिलखुसूस हमारी कौम, हमारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हम लोग जुमा का दिन है, 26 तारीख जुमा के दिन को पड़ता है। ऐसा ना हो कि आप जुमा का दिन पानी नहाकर मस्जिद में जाकर आकर खा पी कर सो जाएं। हरगिज़ ऐसी गलती ना करें। 26 तारीख को आप सुबह सवेरे उठकर 7 बजे नमाज पढ़े फजर की, उसके बाद सदका खैरात करके दुआ करें अल्लाह से, फिर उसके बाद अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। फिर आप वोट का सही इस्तेमाल करके खामोश ना बैठे, बल्कि आप वोट डालने के बाद अपने घर घर गली गली महल्ला महल्ला जाकर लोगों को, जितने हमारे लोग हैं उन सबको वोट डलवाने की फिक्र करें। अगर इस मर्तबा हम चूक करेंगे, याद रखो बीजेपी का पहला निशाना मुसलमान है, दूसरा निशाना क्रिश्चियन है, तीसरा निशाना दलित है, चौथा निशाना कम्युनिस्ट है। ये धीरे धीरे सबको खत्म करने वाले हैं। ये वक्त है मुसलमान जागने का, ये वक्त है हम लोगों को सोचने समझने का, ये वक्त है हम लोगों को एक मुत्तहिद होकर एक मुश्त वोट करने का। इस वक्त हम अपने वोट को हरगिज़ न बांटें। इस वक्त हम अपने वोटों को कोई जनता दल का, आपको मालूम है कि जनता दल इस वक्त जनता दलाल बन चुकी है, वो बीजेपी के साथ अलायंस है। हम सब का अलायंस इंडिया अलायंस है। हम सब मिलकर यहाँ पर जो एमपी कैंडिडेट खड़े हैं एम लक्ष्मण साहब, इनको जिताने की फिक्र करें। हमारा सीरियल नंबर 2 है, इसे लेकर हम जद्दोजहद करने के लिए पूरे शहर के उलमा मिलकर गली गली महल्ला महल्ला आए हैं। हम पूरी कौम को जगाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं इस मर्तबा इलेक्शन में वोट का आपने गलत इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमारे बच्चों की हिजाब पर ये लोग हाथ डालेंगे, उसके बाद हमारी मस्जिदों पर ये लोग हाथ डालेंगे, उसके बाद ये हमारे मदरसों पर पाबंदी लगाएंगे, उसके बाद हमारी शरीयत पर में मुदाखलत करेंगे, ये मुस्लिम पर्सनल्लाह को खत्म करेंगे। धीरे धीरे इस हमारे ऊपर एनआरसी सीए लागू करेंगे और यहाँ के मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को उनके हुकूक के छीनेंगे। इस मुल्क में ये लोग गुलामी को नाफिज करेंगे। ये तमाम चीजों को रखकर उलमा आपके दरमियान में आए हैं। हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना कीमती वोट हरगिज़ जाया मत करो, आप अपने वोट को मत बांटो। एक मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर इंडिया अलायंस को आप लोग सपोर्ट करो। इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर एम लक्ष्मण साहब को आप जिताने की फिक्र करो और सीरियल नंबर 2 को अपना वोट, अपना कीमती वोट डालो और बिल्कुल कंफ्यूज में ना रहो। बिलखुसूस हमारी माएँ बहनें जुमा के दिन कपड़े धोना, जुमा के दिन घर के कामकाज, उस एक दिन के लिए अपने घर के कामकाज को आप रख लो पेंडिंग। हफ्ता भी है, इतवार भी है, फिर 5 साल हमारे लिए है। एक दिन आप सब मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर, आपके घरों में हो सकता है आपका अपना आइडेंटिटी कार्ड आपने उठाकर बीरू में किसी जगह रखा हो, उस दिन एक दिन पहले चाशुम्बे जुमेरात के दिन ही आप अपना आईडी कार्ड निकाल लो। निकालकर मस्जिद महल्ला महल्ला में वोटिंग लिस्ट दी जा रही है कि आपका वोट कहाँ है, आप वहां जाकर वोटिंग लिस्ट लो, लेकर जुमा के दिन अव्वल वक्त में फजर पढ़कर अल्लाह से दुआ कर अल्लाह हमारे मुल्क से जालिम हुक्मरानों का खातिमा कर, ये दुआ करते हुए जाओ, जाकर अपना कीमती वोट दो, अपना कीमती वोट मुत्तहिद। और याद रखो सिर्फ बटन पर उंगली रखना नहीं है, 3-4 सेकंड तक बटन पर उंगली दबाओ और देखो कि आपका वोट सही इस्तेमाल हुआ है नहीं, वो भी देखो। पर्ची किसकी निकल रही वो भी देखो, क्योंकि देखा गया यूपी में किसको भी बटन दबा रहे हैं तो कमल के फूल की पर्ची निकल रही है। अरकल कासलगुड़ केरला में एक मर्तबा बीजेपी का बटन दबा रहे हैं तो 2 पर्चियां निकल रहे हैं। ये सारा ईवीएम में भी गड़बड़ी है, इसलिए आप खड़ो वहां देखो, जिस नंबर 2 सीरियल नंबर 2 है इसे दबाओ, थोड़ी देर तक रुको, पर्ची निकलेगी देखो, इसे देखने के बाद आप वहां आओ। आकर सिर्फ आप लोग घरों में मत बैठो,
गली में निकलो, कौन है गली में जिसने अब तक वोट नहीं डाला है, घरों घरों तक जाओ, महल्ले महल्ले तक जाओ, सबको लेकर जाकर वोट डलवाने कराओ। अगर ये इस मर्तबा हम चूक कर लेंगे, याद रखो फिर 5 साल नहीं, इसके बाद इलेक्शन खत्म है भारत से। ये लोग अपना मनुस्मृति का हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग अपना एक संविधान लिखे हैं, जिस संविधान में उन्होंने मुसलमानों को कैंसर लिखा है, इस्लाम को मुल्क का दुश्मन लिखा है। ऐसा एक ये नाफिज करना चाहते हैं, ये सिर्फ अक्सरियत देखना चाहते हैं। इसी वजह से हम सब के लिए जिम्मे जरूरी है, हम सब अपने मस्जिद मदरसे छोड़कर रास्तों पर इसीलिए उतरे हैं। अगर इस वक्त मुल्क में खुदा ना खास्ता ये हुकूमत आ गई बीजेपी की, तो हमारे मदरसों को भी ताले लग जाएंगे, हमारे दरगाहों को भी खत्म कर दिया जाएगा, हमारे मस्जिद से अजानों को भी खत्म कर दिया जाएगा, हमारी भाई को बच्चियों के सरों से हिजाब को भी उतार लिया जाएगा। इसलिए सोच समझकर वोट को मत बांटो, सब मिलकर हम जो इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, एम लक्ष्मण जो यहाँ के कैंडिडेट है वो एम लक्ष्मण है और सीरियल नंबर 2 है, इसको मुत्तहिद होकर इलेक्शन करें, वोटिंग करें। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप लोग आज ही से इसकी फिक्र में लग जाएं और गली गली जाकर लोगों को वोट डालने की तरकीब दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे कि आप तमाम हजरात इस बात को जानते हैं, आने वाली 26 तारीख बरोज़े जुमा हम सब हिंदुस्तानी भाइयों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, जिस दिन हमारे इस हिंदुस्तान का एक अहम इलेक्शन होने वाला है। गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों से आप हजरात ने अपने इस मुल्क के हालात अपनी आंखों से बखूबी देखे हैं कि किस तरह से इस हिंदुस्तान के अंदर अब तक जिस प्राइम मिनिस्टर पर हम भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए हमने और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने उन्हें जिताया और आगे किया है, अब तक हर कमज़ोर तबके पर बिलखुसूस मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म उन्होंने ढाया। कभी हमारी मस्जिदों पर हमला किया गया, कभी हमारे इस्लामी अहकामात पर हमला किया गया, कभी हमारे कुरान के बारे में बात की गई, कभी हमारे मदरसों को ताले लगाने की बात की गई, हमारी मस्जिदों से निकलने वाले अल्लाहु अकबर की सदाओं को रोका गया, तो कभी हमारी मस्तूरात की हमदर्दी के मुताल्लिक़ और उनकी हमदर्दी को लेकर ट्रिपल तलाक पर बात हुई। यानी कहना ये चाहता हूँ कि हर एक मसले को लेकर मुसलमानों पर ज़बरदस्ती और जुल्म करने का उनका इरादा था। तो ये आने वाला 26 तारीख का जो इलेक्शन है, ये हम सब के लिए बहुत ही अहम इलेक्शन है, इसलिए कि इस इलेक्शन के ज़रिए से हम हमारे मुल्क के हालात को बदल सकते हैं, हम अपने हालात को बदल सकते हैं। अगर गुज़िश्ता 10 सालों की तरह इस इलेक्शन को भी हम अपनी काहिली और सुस्ती की वजह से ज़ाय कर देंगे और अपने कामों काज में अपने घरों में बैठ करके वक्त को यूं ही गुजार देंगे, तो याद रखना ये हमारी बात नहीं, मुल्क के बड़े बड़े उलमाए कराम कह रहे हैं, आने वाले सालों में हिंदुस्तान से इलेक्शन को ख़त्म कर दिया जाएगा। इलेक्शन का निज़ाम हिंदुस्तान के अंदर न होगा, बल्कि सिलेक्शन के निज़ाम को लाया जाएगा। वो खुद इख्तिदार पे अपने इरादों के साथ बैठेंगे और जो चाहे वो करेंगे। और जो सबसे पहले उनका इरादा ये है, NRC, NPR और CAA जैसे काले कानून के जरिए से सबसे पहले मुसलमानों को उठाकर डिटेंशन कैंप में फेंक दिया जाए। नौजवानों, मुसलमानों, हर साल की तरह इस साल भी हम सुस्ती बरत करके अपने घरों में वक्त को ज़ाय करेंगे, तो याद रखो एक वक्त आएगा, उस वक्त में हम सबको डिटेंशन कैंप में फेंक दिया जाएगा। क्या तुम्हें आसाम की खबर तुम्हारे कानों तक नहीं आई? क्या उस वीडियो को तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा? बाप का नागरिकता साबित हो चुका है, बेटी को इस मुल्क का न कहकर डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। क्यों? इसलिए कि बेटी के साथ उनको अपना हवस पूरा करना है, अपने ज़रूरियात पूरे करने हैं। यही हाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलेंगे। इससे पहले हमें जागना होगा, इससे पहले हमें होशियार होना होगा। अगर नहीं जागेंगे तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब तक जो किया है उससे ज्यादा करने के मंसूबे इनके बन चुके हैं, इरादे इनके बन चुके हैं। अब करना क्या है? ऐसा नहीं कि बस हमारा वोट जुमा के दिन, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जुमा के दिन इसलिए वोट का ये निज़ाम रखा गया, ये साजिश है, इसलिए कि मुसलमान जुमा के दिन बिजी रहता है। मैं कहता हूँ उनकी साजिश हमारे लिए ताकत है। क्यों? जुमा के दिन से बड़ा मुबारक दिन हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता।
जुमा की हर घड़ी अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है। उनकी साजिश ये अल्लाह का हुक्म है। ये जुमा के दिन इलेक्शन का आना मुसलमान की दुआओं के कबूल होने के लिए है और मुसलमान के जागने के लिए है। आप हजरात से मेरी गुजारिश कि भाई उठो, जाओ, इलेक्शन डाल करके अपने कामों में बिजी हो जाओ नहीं, बल्कि एक दिन हमारे इस मुल्क के लिए हम तारीफ कर देंगे। एक दिन अगर तारीफ करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल ये हिंदुस्तान हमारा होगा। बल्कि यूं समझो जब तक हम रहेंगे हमारी आने वाले नस्लों के लिए हिंदुस्तान जिस तरह अब तक हमारा था आइंदा भी हमारा रहेगा। वरना अगर हम नहीं जागे, वोट डाल करके आ गए, हमारी जिम्मेदारी हमने पूरी नहीं की, तो फिर ये हिंदुस्तान हमारे हाथों से चला जाएगा। एक वक्त था 75 साल पहले, तब भी हिंदुस्तान मुसलमानों के हाथों से जा रहा था। हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी। आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन हमें जागने को कहती है, हमें होशियार होने को कहती है, हमें दोबारा बेदार होने को कहती है, हमारे जज्बात को दोबारा बेदार करने को कहती है। हम बेदार होंगे, जुमा का दिन हमारा दिन है। जुमा का दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुल जुमाअति सय्यिदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार जो है वो जुमा का दिन है। इस जुमा के दिन में इंशाअल्लाह हम मुसलमान जागेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, हमारे जरिए से जितना हो सके सदका देंगे। सदका देने के बाद दुआएं करते हुए वोट जिस बूथ में हमारा वोट है, हमारी जिम्मेदारी है, वहाँ जाएंगे, वोट करेंगे। वोट करने के बाद वहाँ खड़ करके पोलिंग करेंगे। आने वाले हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, ईसाई भाइयों को, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला जो आपके बूथ में आ रहा है, उस बूथ में जाकर के आप वहाँ उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं कि इस हिंदुस्तान में अब तक जिस पर हम भरोसा करते हुए, जिसे जिता करके इख्तिदार की कुर्सी पे बिठाए थे, जिसे असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर जिम्मेदार बना के बिठाए थे, अब तक उसने हमारी बहनों की इज्जतों को लूटा है, हमारी मस्जिदों से निकलने वाली सदाओं को रोका है और हमारे कुरान की बेहुरमती की। मुसलमानों, छोड़ो हमारी दुनिया, छोड़ो दूसरे काम, मुझे दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या आपके दिलों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत नहीं है? क्या आपके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है? इन गद्दारों ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, कभी पी नवीन के जरिए से, कभी कमलेश तिवारी के जरिए से, कभी किसी और के जरिए से। इन नालायकों ने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करवाई है। आज जागने का मौका है, आज जागने का मौका है। जुमा के दिन सब इंशाअल्लाह अपने अपने बूथ में जाएंगे और सबके लिए मोटिवेट, खुद भी वोट करेंगे। थोड़ा सा हमारा पानी खर्च हो जाए, चाय खर्च हो जाए, इस तरह से एक दोस्त को हम मोहब्बत से किसी और चीज के लिए उभारते हैं। आरे पठे, आरे बजी, आरे मेरे भाई, आरे फला, ले चापी, ले पानी पी, इसी तरह से वोटिंग के लिए उसे उभारेंगे और सही जिसके हक में वोट देना है उसे वोट इंशाअल्लाह दिलवाएंगे। हमारा सीरियल नंबर 2 है, एम लक्ष्मण साहब जिसका नाम है। हम उस कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे और दूसरों को करवाएंगे। इस तरह से हमारे घरों में प्रोग्राम, शादी ब्याह, हम फोन करके औरों को भी बताते हैं ना, आसन में भाई है उसे भी बुला लो, तुमपुर में बहन है उसे भी बुला लो। ये वोट हमारे हिंदुस्तान का भी यूं समझो हमारे घरों की शादियों से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है, हमारे घरों के प्रोग्राम से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। फोन करो अपने रिश्तेदारों को और बताओ, आपका आधा 1 घंटा जाए हो जाए तो हो जाए, लेकिन यही आधा 1 घंटा आपके बच्चों के आने वाले फ्यूचर की इंशाअल्लाह हिफाजत करेगा, आपके नौजवान भाइयों की जिंदगी की हिफाजत करेगा। टेंशन काम के बजाय हमारे घरों में आसानी से जिंदगी गुजारने के लिए जरिया बनेगा, अल्लाह अकबर की सदाओं का जरिया बनेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप दूसरों को भी मोटिवेट करें, भाइयों को, दूर रहने वालों को, करीब रहने वालों को, जानने वालों को, न जानने वालों को, वहाँ बूथ में खड़े होकर भी फोन के जरिए, मैसेज के जरिए हर एक को मोटिवेट करें और सबको जो हमारा सीरियल नंबर 2 है उसे वोट कराएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो इंतखाबात होने वाले हैं 26 तारीख जुमा के दिन, इस सिलसिले में मैसूर में जो नौजवान उलमा की टीम है वो आज कल 3-4 दिन से पूरे शहर में दौरा कर रही है ताकि हमारी कौम को हम लोग जगाएं
कि आप अपना कीमती वोट ज़ाया करे बगैर मुत्तहिद होकर हम लोग इलेक्शन चलाएं और वोटिंग करें। क्योंकि पिछले मरतबा जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो हमारे मैसूर में 63% वोटिंग हुई, यानी 100 लोगों में सिर्फ 60 पर 3 लोग वोट करें। अभी तकरीबन 30 पर 8 लोग वोट नहीं करें। ऐसा नहीं होना अब, क्योंकि जब इंतखाबात होने वाले हैं, पार्लिमानी इंतखाबात, ये मुल्क का फैसला कुन लड़ाई है और फैसला कुन जंग है। अगर इस इंतखाबात में हम लोग गफलत में रहेंगे, कारपोरेशन या असेंबली इलेक्शन की तरह पार्लिमानी इलेक्शन को भी समझकर हम गफलत में रहेंगे, तो खुदा ना खास्ता जो 10 साल से इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं फिस्ताई ताकत बीजेपी वाले, अगर दोबारा फिर से मुल्क पर मुसल्लत हो जाए तो याद रखो कि हमारे से वोट का हक छीन लिया जाएगा। मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाएगा। यहाँ पर जबरदस्ती NRC CA लागू कर दिया जाएगा, हमारी शरीयत में मुदाखलत की जाएगी और यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। मसाजिद, अजान, हिजाब, जो हमारे शरीयत के जितने असासे और शरीयत के जितने मसाइल हैं, इन तमाम को खत्म कर दिया जाएगा। और जो हमारा मुल्क का संविधान और दस्तूर, जो हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, कैसा प्रैक्टिस करना है, ये तमाम हुकूक हमसे सल्ब कर लिए जाएंगे। क्योंकि इस मुल्क में जब दस्तूर ही नहीं रहेगा तो यहाँ के हमारे जो जितने यहाँ पर जातियाँ, जितने मजहब वाले हैं, उनके तमाम के हुकूक छीन लिए जाएंगे। अब वो इस मुल्क में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो एक हिंदुत्व जो अपना एक RSS का नजरिया है, इसको यहाँ पर लागू करेंगे। इस मुल्क में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो मनुस्मृति को जो मानते वो लागू करेंगे, जिसकी वजह से इस मुल्क के हर तबके को नुकसान होने वाला है। इसलिए ये इलेक्शन इस मुल्क का आखिरी इलेक्शन है। अगर इस इलेक्शन में हम सही सोच समझकर हम अपना वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुसलमान गफलत में रहेगा और मुसलमान ये कहेगा कि जुमा का दिन है, थोड़ी देर बाद जाऊंगा, और गफलत में रहेगा, तो ये बहुत बड़ी भूल चूक है। इसलिए हम सब अपील करते हैं कि सबसे पहले आप अपना वोट डालें। वोट डालकर सुबह सवेरे उठें, फजर की नमाज पढ़ें, सदका करें, अल्लाह से दुआ करें, पहले जाकर अपना वोट करें। वोट करके सिर्फ आकर मत बैठें, अपने गली महल्ले कोचे में फिरकर जो वोट नहीं डाले, कोई माजूर है तो उसे ले जाकर अपनी सवारी में वोट डला सकते हैं तो अपनी सवारी का इस्तेमाल करें, और कोई ऑटो इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऑटो इस्तेमाल करें। हर घर घर जाकर पोलिंग कराएं। यानी इस मरतबा 100% हमारी पोलिंग होनी चाहिए। अगर हम पोलिंग करेंगे, मुत्तहिद होकर एक तरफा वोट करेंगे, तो ये बीजेपी इख्तिदार से रुकेगी। अगर बीजेपी को हम हराना है, बीजेपी को हमें इधर से खत्म करना है, तो अपने वोट को मुत्तहिद होकर इस्तेमाल करना है। इसलिए हम सब उलमा इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के जो कैंडिडेट है उनका नाम है एम लक्ष्मण, उनका सीरियल नंबर 2 है। हमारे लाख उनसे इख्तलाफात हैं, हम किस पार्टी से आते हैं सबको मालूम है। हम ये तमाम इख्तलाफात होने के बावजूद भी कौम का मसला है, मुल्क का मसला है, मिल्लत का मसला है, इस वजह से हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इंडिया अलायंस का सीरियल नंबर 2 है और कैंडिडेट का नाम एम लक्ष्मण है। मैं पूरी कौम से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हमारे दलित भाइयों से, हमारे शेड्यूल ट्राइब वालों से, हमारे सिख भाइयों से, हमारे क्रिश्चियन भाइयों से, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त हम सब मिलकर इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें और हम सब मिलकर मुत्तहिद होकर अपना वोट डालें। अगर हम मुत्तहिद होकर वोट डालेंगे तो हर एक आदमी बआसानी दस्तूर के मुताबिक जिएगा, दस्तूर के मुताबिक मजहबी इबादत करेगा, दस्तूर के मुताबिक क्या खाएगा, क्या पिएगा, दस्तूर जो हमें हक दिया वो करेगा। वरना हम वोट नहीं डालेंगे, वोट अपना बांट लेंगे, तो याद रखो कि फिर आने वाले मुल्क में कभी इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। यहाँ पर डिक्टेटरशिप आएगी, यहाँ पर हिंदुत्ववादी मनुवादी सोच यहाँ पर लागू करेंगे। वक्त से पहले, तूफान आने से पहले पुल बनना चाहिए और पानी आने से पहले शहरों में हमें यहाँ पर बांध बनना चाहिए। इस वजह से इलेक्शन है, इसे मामूली ना समझे, इसे पूरे लोग मिलकर मुत्तहिद होकर इसे कामयाब करने की फिक्र करें। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम मज़ाद, जैसा आप जानते हैं, आने वाले 26 तारीख को यानी 2 दिन बाद जुम्मा का दिन जो है MP इलेक्शन होने जा रहा है। मेरी ज़िंदगी के अंदर पहली मर्तबा ऐसा इलेक्शन को देखा कि उलमा इकराम और हिमायतदीन शहर अपने हाथ के पैसा सरमाया खर्च कर ये कैंडिडेट को वोट पूछ रहे हैं।
क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि किस तरह से हालात दिन पर दिन बदलते जा रहे थे। इस बिना पर मैसूर शहर के हमारे नौजवानों ने, उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम सब निकलकर अपना खुद का जान, अपना खुद का माल, अपना खुद का वक्त निकालकर जो अवाम के पास समझा रहे हैं कि वोट की अहमियत समझा रहे हैं कि वोट क्या चीज है। आज हिंदुस्तान के अंदर वार सबसे कीमती हथियार जो है वोट है। ये समझा रहे हैं अवाम को कि अपना वोट को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट को देकर जो है ये सेक्युलर हुकूमत कायम करने की जद्दोजहद करें। पिछले इलेक्शन में आप देखते थे कि बड़े बड़े सियासतदान आते, ये अपना दुकान चला लेकर चले जाते, मगर इस मर्तबा जो है हिंदुस्तान की तारीख के अंदर हर चप्पे चप्पे में उलमाए किराम रास्तों पर निकलकर अवाम से एक होकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर एक सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जो हमारे मैसूर के कैंडिडेट हैं एम लक्ष्मण, इनका सीरियल नंबर है 2। मैं आपके सामने लंबी चौड़ी बात बताना नहीं चाहता क्योंकि हमारे सामने उलमाए किराम है, मुफ्तियाने किराम है, ये बेहतरीन अंदाज में आपके सामने वोट की अहमियत को बता रहे हैं। मैं इन मुफ्तियाने किराम का, उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो अपना जान, अपना माल, अपना वक्त निकाल कर जो है दिन रात तकरीबन 10 दिन से अवाम के बीच में पहुंचकर जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो वोट की अपील कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारे वास्ते खुशनसीबी की बात है। मैं अवाम से खुसूसन आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि आप जुम्मा का दिन जो है फजर की नमाज पढ़कर, जैसा हमारे मुफ्ती नूरुद्दीन मौलाना साहब बार बार बता रहे हैं, फजर की नमाज पढ़कर फौरन जो है वोट अपना डालकर, अपने घर वालों का डालकर, अड़ोस पड़ोस का डालकर, खानदान कबीले वालों का, महिलाओं वालों का, बल्कि पूरा दिन बिजनेस को बंद कर जो है ज्यादा से ज्यादा कसीर से कसीर के तादाद में एम लक्ष्मण को जिताने की फिक्र करें। मैं और एक बार जो है मुफ्तियाने किराम, उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो ये रास्ते के अंदर जद्दोजहद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि आने वाली जुमा 26 तारीख को वोट का दिन है और ये वोटिंग बहुत ही अहमियत की हामिल है। हमने आज तक जो है वोट के सिलसिले में बहुत गफलत बरती है, जिसकी वजह से हमें इसका भुगतान भी बहुत बुरा मिला है। हम लोगों ने हमेशा गफलत की से जो है वोट की अहमियत को समझे बगैर ज़ाय किया है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपना हक दिलाती है, लेकिन हम लोगों ने गफलत की वजह से जो है ज़िंदगी गुजारी, जिसकी वजह से आज सज़ा हम पा रहे हैं। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से और तमाम ही लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो वोट की अहमियत को समझें। आपका एक एक वोट कीमती है। आप एक वोट के ज़रिए से सामने वाला जो है जीत सकती है और सामने वाला हार भी सकता है। आप अगर अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे और गफलत में रहेंगे तो उसका नुकसान बहुत भारी चुकाना पड़ेगा। तमाम से दरख्वास्त है कि अपने वोट की कीमत को समझें। ऐसी कोशिश करें जैसे हम अपने घर में कोई प्रोग्राम हो तो हम फिक्र करते हैं, शादी वगैरह हो तो हम दूर दूर रिश्तेदारों की फिक्र करते हैं कि फलां को बुलाना है, फलां दावत में आए या नहीं आए, उनकी क्या तकाजे हैं, उन तक पहुंचकर उनकी बात पहुंचाने की फिक्र करते हैं। ऐसे ही इस वक्त जो है तकाजा है कि हम अपने खानदान वालों को, अपने घर वालों को इस पर आमादा करें कि वो अपनी वोट की अहमियत को समझे और हर फर्द जाकर वोट डालने की कोशिश करें। वो ये ना समझे कि मेरे एक वोट से क्या होगा। आप ये करें कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप वोट डालना है, ये आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, फिर दूसरों को भी उसको तवज्जो दिलाएं कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हम अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे और गफलत में रहेंगे तो फिस्ताई ताकतें आ जाएंगी और उस वक्त सर पीटते रहेंगे और हम कहते रहेंगे कि हुकूमत ऐसी आ गई है और हुकूमत की वजह से हमें ये परेशानी है, मसाइल है। तो ये हुकूमत जो फिस्ताई आती है वो हमारी गफलत की वजह से
आती हैं, हमारी लापरवाही की वजह से आती है। इनको अगर रोकने का जरिया कोई है तो वो सिर्फ वोट है। ये वोट बहुत बड़ी ताकत है जिसको आज तक हमने गफलत की वजह से ज़ाय किया है, लेकिन अब तो कम से कम हम लोगों को गफलत छोड़कर उठना चाहिए, अपने ताकत को से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा एक एक वोट कीमती है, हमें बताना चाहिए। एक बूंद बूंद से जो है दरिया भरता है। हम एक बूंद को ये समझे कि ये बूंद है, इससे क्या होने वाला है, तो अगर वही एक एक बूंद जमा हो जाएंगे तो पूरा तूफान आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक एक वोट कीमती है, अपनी इस वोट की ताकत को इस्तेमाल करें और हमारा जो कैंडिडेट है उसे जिताने की फिक्र करें, यही दरख्वास्त है। सामईन इकराम, हम तमाम उलमा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सिर्फ ये बात बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि आने वाले 26 तारीख को हमारा मुल्क का पार्लिमानी इलेक्शन है। इस पार्लिमानी इलेक्शन में आपको अपना कीमती वोट सही जगह वोट का इस्तेमाल करना है और हम गफलत में हरगिज नहीं रहना चाहिए कि हमारे एक वोट से क्या होगा। आपके एक वोट से, हम सब के वोटों से मुल्क की तकदीर बदलेगी, मुल्क के हालात बदलेंगे। 10 साल से इस मुल्क पर जो फिस्ताई बीजेपी ताकत काबिज है, इस बीजेपी ताकत को रोकने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन मौका अल्लाह ने हमें इस वक्त दिया है। अगर इस वक्त हम गफलत में रहेंगे, इस वक्त हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर बीजेपी इस मुल्क में फिर से इक़्तिदार पर आई, याद रखना फिर कभी इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, डिक्टेटरशिप आएगी। डिक्टेटरशिप आने के बाद इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, इस मुल्क के दस्तूर को खत्म करेंगे। फिर इस मुल्क के दस्तूर में जो हमें खाने पीने पहनने ओढ़ने मजहब पर चलने की आज़ादी है, इन तमाम आज़ादी को ये लोग छीन लेंगे। ये लोग छीनने के बाद जबरदस्ती मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, क्रिश्चियनों पर, यहाँ के माइनॉरिटीज पर ये तरह तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करेंगे। मुसलमानों को जबरदस्ती एनआरसी सीए लागू करेंगे, लागू कर तरह तरह की तकलीफें देंगे, इस वजह से कि इस मुल्क का दस्तूर खतरे में है। ये इलेक्शन जंगी पैमाने पर लड़ने वाला इलेक्शन है। इस इलेक्शन को हम लोग पूरी समझदारी के साथ, पूरी सोच विचार के साथ मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर हम लोग वोट करना चाहिए। तो आप अपने कीमती वोट की कीमत को जाने। इस वक्त हम लोग मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर इलेक्शन करना चाहिए। भारत में इलेक्शन आखिरी इलेक्शन है। खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी आई तो याद रखो कि मुल्क का आखिरी इलेक्शन होगा, फिर सिलेक्शन किया जाएगा, डिक्टेटरशिप आएगी, तुम्हारे हुकूक छीने जाएंगे, तुम्हारे मजहब पर हमले किए जाएंगे, तुम्हारे मजहबी इदारों पर हमले किए जाएंगे। इसलिए मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से, दलित, सिख, ईसाई, जितने इस मुल्क में माइनॉरिटी हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, इन सब से कहना चाहता हूँ, मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर ये जो हुकूमत फिस्ताई हुकूमत बैठी है, ये सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं, ये मुल्क की दुश्मन है, इसलिए इन्होंने मुल्क को लूटा है। ये ओबीसी के दुश्मन है, इसलिए आज तक ओबीसी को इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है। ये किसानों के दुश्मन है, इन्होंने आज तक किसानों की बिल को पास नहीं किया है। ये हर तबके के, भारत के हर नागरिक के दुश्मन है। इसलिए हमें चाहिए कि सब मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर वोट करें और हम सब मिलकर यम लक्ष्मण, जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है, यम लक्ष्मण, और जिनका सीरियल नंबर 2 है, इनको जिताने और कामयाब करने की फिक्र करें। हम सब इस दिन वोट के दिन गफलत में ना रहें। एक वोट भी इस वक्त कीमती है। सब मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर इलेक्शन चलाएं, वोटिंग करें। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। होगा और आइंदा इलेक्शन भी नहीं, सिर्फ सिलेक्शन होगा। इसलिए ये इलेक्शन हमारी जिंदगियों का सबसे बेहतरीन इलेक्शन है और सबसे ज्यादा जरूरत और अहमियत का हामिल इलेक्शन है। इस इलेक्शन को, इस वोट को जरूरी समझें, जरूरी समझकर वक्त पर पहुंचे अपने बूथ पर और वोट दें। आने वालों को मोटिवेट करें, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, सबको मोटिवेट करके वोट किसी का इस मर्तबा ज़ाया न हो। जो भी 18+ है, चाहे वो हमसे जानने वाले हो न जानने वाले हो, सारे लोगों को जहाँ जहाँ उनका बूथ है वहाँ की जिम्मेदारी बता करके वहाँ भेजें और वोट इस मर्तबा का जरूर डलाएं। खुसूसन कर्नाटक से इंशाअल्लाह ऐसा वोट की ईवीएम मशीन का ऐसा बटन दबेगा
کہ وہاں यूपी में रहने वाले या दूसरी जगह रहने वाले हमारे मुल्क के गद्दार और दुश्मन इंशाअल्लाह सबक सीखेंगे। इसलिए इस बार के इलेक्शन को बिल्कुल ज़ाय न करें, वक्त पर पहुंचें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। हमारे पूरे मिलकर वोट करना है, क्योंकि इस माहौल आजकल हिंदुस्तान का माहौल बड़े खतरे में चल रहा है। हमारे लिए हर तरह के साजिशें वो बना कर रखे हैं। अगर हम वोट करने में गफलत करेंगे, सुस्ती करेंगे, काहिलागी करेंगे, फिर से बीजेपी आ जाएगी और आने के बाद जो उन्होंने मंसूबा बनाया है, जो उन्होंने चालें बना कर रखी है, सबसे पहले उनके चालों में निशाना हम मुसलमान होंगे। अगर हम हिंदुस्तान में आज़ादी के साथ जीना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गफलत को छोड़कर, काहिली को छोड़कर, सुस्ती को छोड़कर जमकर वोट करना है। बस यही नहीं कि हम वोट कर दिए और हम आकर बैठे। जिस तरह अगर गली के अंदर एक शादी होती है तो बाजू के एक घर वाले दूसरे घर वाले को पूछते हैं कि शादी को नहीं आ रहे, तो इसी तरह उस दिन पूछना है कि वोट डालने नहीं आ रहे, चलो हम साथ वोट डालेंगे। जिस तरह एक दावत को मिलकर जाते हैं, जिस तरह कहीं घूमने के लिए मिलकर जाते हैं, उसी तरह आने वाले 26 तारीख जुमा के दिन सब एक हाथ थाम कर लाइन बनाकर जाकर हम वोट डालना है। हमारा वोट किसी तरह ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि हमें कोई सरकार नहीं मार सकती, हमें कोई सरकार नहीं डरा सकती। सिर्फ हमारी गफलत हमें पीस कर रख डालेगी, हमारी गफलत हमें बर्बाद कर रख डालेगी। इसलिए इस आने वाले 26 तारीख जुमा का दिन है। जुमा के दिन इस ख्याल में ना रहे कि हम घर को पाक करना है, हम घरों के अंदर कपड़ों को धोना है। एक दिन डिले कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जुमा को धोने का हफ्ते को ढो लो, लेकिन जुमा के दिन वोट जरूर करना। सुबह के 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग जैसा ही शुरू होती है फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जम्मे गफीर में हम वहाँ पहुँचकर पूरी तरह वोट करेंगे और वोट कर कर हम हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर जमात को जिताएंगे, सेकुलर पार्टी को जिताएंगे। इस वक्त हर रियासत से एक सेकुलर पार्टी खड़ी है, हर जगह कहीं समाजवादी पार्टी है, कहीं तृणमूल कांग्रेस है, केरला में कम्युनिस्ट है, तमिलनाडु में डीएमके है, हर तरफ से एक सेकुलर पार्टी खड़ी है। इसलिए हम उस पूरे मिलकर एक पार्टी ने इंडिया अलायंस कर एक पार्टी बनाई है, उस पार्टी को जिताना है। इसलिए हमारे यहाँ कैंडिडेट 2 नंबर सीरियल नंबर से एम लक्ष्मण साहब खड़े हुए हैं, उनको हम चौक दर चौक जमकर वोट कर उनको जिताना है और हर तरफ से उनको जिताकर कामयाब बनाना है। और हम हिंदुस्तान के आइन को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाना है, हिंदुस्तान के सिख को बचाना है, ईसाई को बचाना है, दलित को बचाना है, कम्युनिस्ट को बचाना है। सबको बचाने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर है, क्योंकि इससे 200-300 साल पहले भी मुसलमानों ने हिंदुस्तान को बचाया था। आज भी वो दौर आ गया है, आज भी हम हिंदुस्तान को बचाएंगे, हिंदुस्तान के कानून को बचाएंगे। इसलिए हम आपसे, आप हमारे माँ बहनों से, हमारे भाइयों से, हमारे बुजुर्गों से दरख्वास्त करते हैं कि 26 तारीख के दिन गफलत ना करें कि रात में देर में सोए, सुबह की नमाज के लिए उठे, फिर नमाज पढ़कर सुस्ती में फरक जाए और आखिरी वक्त में जाकर टाइम हो गया हमने वोट डालने नहीं दे रही, ये शिकायत ना करें। सबसे पहले जब उठेंगे फजर की नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद 7 घंटे को शुरू हो जाएगी, 7 घंटे से पहले हमारी वहाँ क्यों होना चाहिए। हम आप लोग तो दरख्वास्त करते हैं जमकर खुद भी वोट डालें, अपने साथ 50 या 100-150 जितने साथ होते हैं उनको जगा कर वोट डालने के लिए भेजें। हम बस आपके पास यही पूछने, यही कहने के लिए आए हैं। के निज़ाम को खत्म कर देंगे, इस मुल्क से दस्तूर को खत्म कर देंगे, इस मुल्क से हमारे मुल्क में जितनी जातियाँ, जितने मज़ाहिब बसते हैं, इन सब की मजहबी आज़ादी को ये लोग सल्ब कर लेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि इस मुल्क के दस्तूर को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इस मुल्क के लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इस मुल्क के भाईचारे को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसकी वजह से एक सेकुलर हुकूमत को लाना हम सबके जिम्मे ज़रूरी है। आपको जानना चाहिए, अगर बीजेपी आई तो याद रखो सबसे पहले निशाने पर हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारी शरीयत है, हमारा दीन है। इसके साथ साथ अगर हम लोग जद्दोजहद नहीं करेंगे, इसी जद्दोजहद को समझते हुए, हालात की नज़ाकत को भांपते हुए,
ये तमाम उलमा आपके पास आए हैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए। आप उस दिन जुमा का दिन है, जुमा का दिन मुझे मालूम है कि घर में बहुत कामकाज रहते हैं, लेकिन एक दिन के लिए अपने कामकाज को पोस्टपोन कर लें, कर अपने कामकाज को छोड़कर आप वोट डालने के लिए जाएं। पूरे कोटरसों में जितने हमारे माएँ बहनें, जितने नौजवान दोस्त, जितने बुजुर्ग हैं, ये सब मिलकर इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए जाएं। हम चाहते हैं कि पोलिंग के दिन हमारा वोट का परसेंटेज बढ़े। वोट का परसेंटेज ये ना सोचे कि हमारे एक वोट से क्या होने वाला है। याद रखो, जमहूरी मुल्क में एक वोट की बहुत कीमत है। एक वोट से इंसान जीत भी सकता है, हार भी सकता है। अगर आपकी गफलत से यहाँ पर इंडिया अलायंस हार कर बीजेपी आ गई तो 5 साल नहीं, इसके बाद आप भुगतेंगे, आपके बच्चे भुगतेंगे, हम सब लोग भुगतेंगे। इसलिए हम सब लोग मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें। हमारा सीरियल नंबर कितना है? सीरियल नंबर 2। हमारे एमपी कैंडिडेट का नाम क्या है? एम लक्ष्मण। इनको हम सब लोग मिलकर सपोर्ट करें, सपोर्ट कर अपने वोट डालें। वोट डालकर एक मजबूत सेकुलर पार्टी को हमारी रियासत में जिताने की फिक्र करें। मैं यही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं गुजारिश कहता हूँ, उस दिन हमारे नौजवान दोस्त अहबाब, जुमा का दिन है, सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ कर फजर के बाद की तुम चाय पियो ना पियो, फजर के बाद तुम्हारे काम काज करो ना करो, लेकिन पूरे महल्ले वाले मिलकर आप वोटिंग करो, वोटिंग को बढ़ाओ, घर घर जाओ, सिर्फ अपना वोट करके बाकी मत रहो, हर घर जाकर दूसरों की भी वोट डलाने की फिक्र करो। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी वोट सिलेक्शन के जरिए से हुक्मरान बनेंगे और हम सब पर हुकूमत करेंगे। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दलित भाइयों, मेरे ईसाई भाइयों, आज हम हमारी मस्जिदों को छोड़कर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, हम तमाम हिंदुस्तानी भाइयों के हक में समझाने के लिए आए हैं। आने वाले इस 26 तारीख, इस 26 जो डेट है, जो अप्रैल 26 अप्रैल है, इस इलेक्शन को ज़ाया न करें। इसे अपनी सुस्ती की वजह से बहुत सारे मुसलमान भाई भी, हिंदू भाई भी और दूसरे मजहब के हमारे हिंदुस्तानी भाई भी अपने वक्त को ज़ाया करते हैं घरों में रहकर, या फिर गली चौराहों में जाकर वक्त को ज़ाया करते हैं। अब तक का वक्त ज़ाया हो गया तो हो गया, लेकिन 26 अप्रैल का वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का वक्त हम इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के लिए लगाएंगे। अगर ये वक्त हम हिंदुस्तान के लिए न लगाएं तो फिर हिंदुस्तान हमें कभी लग नहीं सकता। हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है, हिंदुस्तान के कानून को बचाना है और हिंदुस्तान की एकजहती को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, हिंदू भाइयों की इज्जत को, दलित भाइयों की इज्जत को, मुसलमान भाइयों की इज्जत को बचाना है। तो ये 26 तारीख का इलेक्शन, 26 अप्रैल का इलेक्शन मेरे हिंदू भाइयों तुम्हारे लिए भी जरूरी है, मेरे दलित भाइयों तुम्हारे लिए भी जरूरी है, मेरे ईसाई भाइयों तुम्हारे लिए भी जरूरी है। क्या तुम्हारे साथ अब तक जुल्म नहीं हुआ? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन 10 सालों में क्या किया है? क्या हम सब पर जुल्म हुआ है? ये हमारे सामने है, हम देख चुके हैं। आइंदा देखने वाले नहीं, आइंदा देखने वाले नहीं। 26 तारीख को क्या करेंगे? सुबह उठकर सबसे पहले हमारा जो हक वोट का है वो जाएंगे, जिस जिम्मेदारी बूथ की जिम्मेदारी हमारी है वहां जाकर वोट करेंगे, फिर वहीं खड़े हो जाएंगे और जब तक वोटिंग का वक्त खत्म नहीं हो जाता आने वाले हिंदू भाइयों को भी समझाएंगे, आने वाले सिख भाइयों को भी समझाएंगे, सबको मोटिवेट करेंगे किसको वोट करना है, देश को किस तरह बचाना है, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह बचाना है, मुल्क के सेकुलरिज्म को किस तरह बचाना है। लोगों को मोटिवेट करेंगे एक दिन का वक्त देकर। आने वाले 5 सालों का जो मुल्क का भविष्य है, मुल्क का मुस्तकबिल है, मुल्क का जो आने वाले दिन मुल्क के हैं, उन दिनों को हम इंशाअल्लाह ये सुबह 6 से लेकर शाम 6 तक का वक्त देकर इंशाअल्लाह हम बचाएंगे। सारों के हक में इलेक्शन जरूरी है, इसलिए काहिली हरगिज मत बरतो। क्यों? तो छोटे मोटे हमारे काम आ रहे तो हमें क्या करती, हमारे जरूरी कामों को छोड़ डाल को, भाई दोस्त की शादी है, भाई हमारे फला हिंदू भाई की शादी है, फला के घर में क्या की प्रोग्राम है, चले जाती वक्त को फ्री कर उससे ज्यादा अहमियत का हामिल ये इलेक्शन का 26 अप्रैल का दिन है।
हम सबको समझा कर इंशाअल्लाह उनका बूथ की जिम्मेदारी जहां है वो वहां जाकर वोट करेंगे। दूसरा इंतखाबात में जिसके जगाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, क्योंकि अक्सर देखा गया है हमारी वोटिंग जहाँ पर रहती है 50% वोटिंग करे जाते हैं, जबकि हम इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग करना है। क्योंकि अब ऐसा माहौल है, अब तक जो इंतखाबात चले हैं, अब तक जो इलेक्शन चले हैं वो सिर्फ इलेक्शन के हद तक रह गए हैं। आज जो 2024 को जो इलेक्शन हो रहा है 2024 का, ये अलग ही एक इलेक्शन है, अलग ही एक इंतखाबात है। क्योंकि अब तक जो गुजरे वो एक भाईचारगी में हिंदुस्तान गुजरता रहा। ये 10 साल से हिंदुस्तान के अंदर भाईचारगी को खत्म कर कर नफरतों में बिठा कर बैठ चुके हैं। आज जो हिंदुस्तान पर जो हुकूमत चला रहे थे वो और आगे आकर हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर कानून को बदलना चाहते हैं, हिंदुस्तान में हर तरह के माहौल को बदलना चाहते हैं। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने आकर इस हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा आईन बनाकर हिंदुस्तान के अंदर हर एक को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको भाई भाई बनाकर उन्होंने संविधान बनाकर गया था। उस संविधान को बदलकर ये अपना संविधान पेश करने के लिए ये तैयार बैठे हैं। अगर आज भी हम गफलत में बैठ गए, ये मामूली इंतखाबात हैं, ये मामूली इलेक्शन है, आता रहेगा जाता रहेगा, अब तक आया चले गया। लेकिन इसके बाद अगर अब हम यहाँ नहीं जागेंगे, फिर हम यहाँ पर सेकुलर को नहीं लाएंगे, आइंदा इलेक्शन नहीं होगा। अगर सेकुलर रहेगी तो आइंदा इलेक्शन होगा। अगर सेकुलर नहीं रहेगी, हम गफलत में बैठे रहेंगे, हम वोट को नहीं बढ़ाएंगे, हम वोट नहीं डालेंगे, तो याद रख लो ये हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल जाएगी। 200 साल पहले भी हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम उलमा, हम मुसलमान आगे बढ़कर हिंदुस्तान को बचाया था। 200 साल के बाद भी अब 10 साल से जो हुकूमत चली है, अगर उनसे हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के आइन को बचाना है, हमारे इस माँ बहनों की इस्मत को बचाना है, हमारी इज्जत को बचाना है, हम अपनी आज़ादी में जीना है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर